أبدع الأخلاق والدين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی قدر، مسجد میں آنے کے بعد بےحد خوشی اور مسرت ہوئی اور آیت پہ نظر پڑی تو میں نے سوچا آج اس محفل مقدس میں غوث سینا کے حوالے سے اس محفل کو سجایا گیا تو کیوں نہ اسی آیت کی تلاوت کی جائے کہ جس سے مقام غوثیت، مقام قطبیت، مقام ولایت اور مقام بندگی کا اظہار ہو رہا. اور کبھی بھی ولی ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس کے جسم سے، جس کے انداز سے، جس کی صبح و شام سے اللہ کے لیے تقوی، اللہ کی رضا اور اللہ کے لیے جذبے کا اظہار نہ ہو رہا ہو. اسی لیے جب آیت ولایت یعنی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آیت نازل ہوئی تو صحابہ پہنچے اور عرض گزار ہوئے من اولیاء اللہ، یا رسول اللہ یہ اللہ کے اولی، اللہ کے دوست ہیں کون؟ پوچھا کسی سے، اللہ کے رسول. آیت اتر رہی ہے رسول پر تو رسول ہی بتائیں گے کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں. یہ اور بات ہے کہ جب اس آیت پر تقریریں زیادہ تر علماء حق کے انداز اور طور طریقے سے آپ سنتے رہتے ہیں تو کہا اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں تو حضور سید ابرار و اخیار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے دوست وہ ہیں، میں کسی فرقے، کسی مذہب، کسی جماعت کا نام نہیں لیتا، بس اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، کہ تم جب بھی انہیں دیکھو گے تو کوئی اور یاد نہیں آئے گا بلکہ خود اللہ یاد آئے گا. نماز میں ہم ہوں، نماز میں تو کبھی کبھی دل جو ہے بازار کا سفر کرتا ہے، نماز میں ہوں تو دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تلاوت میں ہوں تو ہم ادھر ادھر بہکتے رہتے ہیں. ساری بندگی آپ کریں، ساری عبادت کریں تو بندے کہتے ہیں دل نہیں لگتا. کیوں؟ اس لیے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ جو وسواس خناس، یہ شیطان جو ان کی جماعت ہے، یہ بندوں کے دلوں میں داخل ہو کے وسوسہ پیدا کر دیتے ہیں. اور یہ وسوسہ ڈالنے والے صرف آگ کے بنے ہوئے شیطان ہی نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کا حق ادا کرتے ہیں، شیطانی انداز پر رہتے ہیں. تو دیکھیں آپ، ایک نمازی ہے تو اس کے دل میں شیطان جب جائے گا تبھی تو وسوسہ ڈالتا ہے. آپ اگر نماز کی حالت میں ادھر ادھر کی سیر کریں، سمجھ جائیں مسجد کے اندر شیطان آ چکا ہے، دل میں داخل ہو گیا. میں سوچنے لگا نماز کی صفوں میں بندے کے دل میں شیطان آ سکتا ہے، مدینے سے حضور نہیں آ سکتے. مدینے سے
हुजूर नहीं आ सकते तो कलमा हम शैतान का पढ़ें या नबी का पढ़ें। तो जो आदमी शैतान के वसवास और शैतान की रफ्तार को तस्लीम करता है और अगर नहीं करेगा तो आयत उसे धुतकार देगी, क्योंकि आयत कह रही है कि वो खन्नास, वसवासे खन्नास जो इंसानी सद्र में, इंसानी सीने में वसवसा डाल देते हैं। तो आप खुश हो जाएं, वो बंदे अगर वसवसे को निकालना चाहते हैं तो फिर एक ख्याल को दिन में लाना पड़ेगा। वसवासे खन्नास को दूर करना है तो ख्याले गुंबदे खजरा से अपने सीने को मामूर कर लें। आप देखें, तवज्जो देते चले जाएं, गौर फरमाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बंदा रहेगा ज़मीन में, बंदा रहेगा दुनिया में, बंदा टहलेगा, घूमेगा, फिरेगा, लेकिन जब भी तू उसे देखेगा तो तुझे बाजार नहीं, तुझे दुनिया की रंगीनियां नहीं, बल्कि जमीन पर तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। जमीन पर तुम्हें खुदा याद आ जाएगा। हम पर साहिब इल्ज़ाम लगता है कि ये लोग बड़े पीर की महफिल सजाते हैं। हम पर इल्ज़ाम लगता है कि शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की महफिल में ये लोग बैठते हैं, अपना वक्त देते हैं। उनसे कह दो कि इनकी महफिलें और इनको याद करने से ही हमें अल्लाह याद आता है, हमें अल्लाह याद आता है। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालों, ये ईमान वालों से ही तो अल्लाह कलाम कर रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते। परवरदिगार हम मुत्तकी कैसे हो गए, हम मुत्तकी कैसे हो गए? कहा पहले जो मोमिन होगा वही मुत्तकी होगा। पहले जो मोमिन होगा, ईमान पर तकरीर हो तो लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आप लोग तकवा पे तकरीर नहीं करते। हम तकवा तक पहुंचे कैसे? जब तक कि बंदा मोमिन न हो जाए, बंदा मोमिन न हो जाए, बंदा मोमिन न हो जाए। कहा ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो और सच्चों के साथ हो जाओ। जब परवरदिगार बंदे मोमिन हो गए, बंदे नमाजी परहेजगार हो गए, तो अब कौन से सच्चे हैं जिनके हम साथ हो जाएं? अल्लाह ने कहा ये ईमान एक अजीम दौलत है, ये तकवा एक अजीम सरमाया है। इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए, इसके बचाव के लिए तुम्हें मैं एक मजबूत तिजोरी दे रहा हूँ, जिस तिजोरी में तुम ईमान और तकवे की दौलत को रख दोगे। कोई डाकू तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता, कोई चोर उस तिजोरी से खजाना ईमान और खजाना तकवा को निकाल नहीं सकता। परवरदिगार वो तिजोरी क्या है? वही तो है जो सच्चों की जमात है। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं वो सादिकीन हम ही तो हैं, वो सादिकीन हम ही तो हैं। हजरत इमाम हुसैन सादिकीन में है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सादिकीन में है, हजरत इमाम मोहम्मद सादिकीन में है, जाफर सादिक सादिकीन में है, हसन अस्करी सादिकीन में है, और गौसे समदानी, शहबाज़े लामकानी, हजरत शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सादिकीन में है। इनसे जो जुड़ जाएगा उसका ईमान भी सलामत, उसका तकवा भी सलामत। परवरदिगार हमारी जरा रहनुमाई फरमा। हर तबके के लोग कहते हैं हम ही तो मोमिन हैं, हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, मोमिन का मकान है, मोमिन का मोहल्ला है, मोमिन की मस्जिद है, मोमिन का मदरसा है, सब तो मोमिन ही हैं। कौन अपने को कहेगा कि हम तो ईमान हैं? कोई साहिब कहने वाला है? आज के दौर में चाहे जितने बड़े डाकू हों, जितने बड़े गासिब हों, जितने बड़े बेईमान हों, वो सब कह रहे हैं हम ही तो मोमिन हैं, और उसको देखकर लोग कुर्सियां छोड़ देते। और एक आलिम दीन जब आए तो उठना उन्हें नाजेबा मालूम होता है, नागवार लगता है। याद रखें, आलिम की जुबान पर अगर फरमान है तो अहमद मुख्तार का फरमान है, उसके दिल में अगर कोई बात है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। कम से कम इस नेहज पर और इस नजरिए के हिसाब से उठ जाना चाहिए। नेताओं की इज्जत कब तक करते रहोगे? इस मोहल्ले में ये बात बोलने में हो सकता है बहुतों को तकलीफ हो जाए, लेकिन हम तकलीफ देखें, कभी भी बंदे का इलाज, किसी को बुखार हो जाए तो बुखार चॉकलेट से नहीं उतरता है,
कड़वी दवा से उतरता है, कड़वी दवा से वो बुखार उतरेगा। तो हो सकता है किसी को मेरी बात कड़वी लगे, लेकिन लगने दो, अपने दिल से कहो कि अपने दिल से कहो, जरा बात को बुरी मत समझ, क्योंकि यही बात तो है जो हमें अल्लाह की रजा की तरफ ले जाने वाली है, रसूल की मोहब्बत की तरफ ले जाने वाली है। तो ईमान वाले हैं कौन? कहा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब तेरे रब की कसम है, महबूब तेरे रब की कसम है, जो आपकी बात न माने वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता। जो आपकी बात न माने वो कभी भी मोमिन नहीं हो सकता। अच्छा देखें, बात अगर किसी की मोहताज है तो वो जात की है। क्या है? वो जात की, जात ही ना हो तो बात कहां से आएगी? बात कहां से आएगी? तो हुजूर की जात पहले है, बात बाद में है, और जात ही को लोग मिटाने पर तुले हैं। तो बात की वैल्यू क्या रह गई? अरे बात की फर्मा बरदारी करने वालों, ये तो सोचो कि जात क्या है और कहां है। जात बात आज तक चल रही है, और जो रसूल की बात नहीं मानता वो मोमिन नहीं हो सकता। मोमिन बनने के लिए रसूल की बात का एतराफ शर्त है, शर्त है ना। तो हुजूर की बात आज भी चल रही है। कोई अगर 5 वक्त नमाज पढ़ता है तो समझ जाओ रसूल की बात है, कोई वजू कर रहा है तो समझ जाओ रसूल की बात है, कोई रोजा रख रहा है तो समझ जाओ रसूल की बात, कोई इफ्तार कर रहा है रसूल की बात है, कोई सहरी कर रहा है रसूल की बात है, कोई निकाह कर रहा है रसूल की बात है। जो बच्चों की तरबियत और परवरिश सुन्नत के मुताबिक कर रहा है ये रसूल की बात है। मुसलमान की सलाहो फलाह रसूल की बात है, सजदे की कबूलियत रसूल की बात है, अल्लाह की रजा रसूल की बात है। रसूल की बात को नजरअंदाज करके कोई रब तक पहुंच ही नहीं सकता। जब बात में इतनी ताकत है तो साथ में कितनी ताकत है। अब आप अंदाजा लगाएं, मोमिन भैया वो है जो रसूल के दर का गुलाम हो। मोमिन वो है जो फख्र से मार्केट में कहे कि हम किसी ऐसे वैसे के गुलाम नहीं, अहमद मुख्तार के गुलाम हैं। जो सरेआम स्टेज पर खड़ा होकर कहे कि मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ, मैं बहुत ज्यादा सरमायादार वाला हूँ, साहिब इख्तिदार हूँ, पावर वाला हूँ। इस पावर के बावजूद वो कहे मेरे सारे इख्तिदार, मेरा सारा हुस्न जमाल अहमद मुख्तार की शान पर कुर्बान। जो ये जज्बा रखे वही तो मोमिन है, वही तो मोमिन है। कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, आमनू ऐ ईमान वालो। देखें अलिफ है, मीम है, नून है, वाव है। ये अलिफ एक, अलिफ एक, अलिफ एक, अलिफ से अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। तो अलिफ से अल्लाह, मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मीम जो है ना अलिफ से मिला देता हूं, ये मीम जो है ना अलिफ से। अब हर्फ को जोड़े, अलिफ एक, मीम दो, नून एक, वाव चार। चार की इज्जत जरूरी है। सिद्दीक अकबर की इज्जत करो, फारूक आजम की इज्जत करो, उस्मान गनी की इज्जत करो, मौला अली की इज्जत करो। इस आमनू में जरा गौर करें। अब देखें फिर से हम गिनते हैं, अलिफ एक, मीम दो, नून तीन, वाव चार, फिर उसके बाद एक और अलिफ लगी है, पांच। इस पांच से प्यार करोगे तभी मोमिन बनोगे। हुजूर एक, मौला अली दो, बीबी फातिमा तीन, इमाम हसन चार, इमाम हुसैन पांच। बंदा मोमिन ऐसे ही नहीं बनता, सिर्फ तस्बीह हिलाने से मोमिन नहीं बनोगे। मोमिन बनने के लिए चार से मोहब्बत, पांच से मोहब्बत जरूरी है, तब अल्लाह कहेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। फिर कहा अच्छा परवरदिगार हम क्या मोमिन बन गए? हाँ तुम मोमिन बन गए तो कुछ और भी करना है, हमारी और भी नौकरी है, हमारी और भी ड्यूटी है। हम आ गए, तेरे ईमानी कंपनी में हमारा दाखिला हो गया, तेरे ईमानी मदरसे में हमारा एडमिशन हो गया। हमारी नौकरी क्या है, हमें करना क्या होगा? कहा इज़ा कुंतुम इला सलाती, जब तुम नमाज कायम करने का इरादा करो, नमाज कायम करो। जब तुम नमाज कायम करो, जब तुम नमाज की तरफ खड़े हो जाओ, कायम करो। अच्छा देखें साहब, नौकरी शुरू हो गई,
नौकरी शुरू हो गई। लोगों ने समझा था ईमान खिलौना है, ईमान बाजार में ऐसे ही मिल जाता। नहीं, ईमान आसान नहीं है। अल्लाह ने कहा जब तुम नमाज कायम करो फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो लो। तुम्हारा चेहरा बहुत गंदा हो चुका है। अपनी स्याही, अपनी गलासत, अपनी गंदगी जो कुफ्रो, शिरको, बिदअतो, गुमराही, निफाक में जो तुम्हारा चेहरा स्याह हो गया था, उन गंदगियों से धुल लो। लोग समझते हैं धूल लग गई है, इस्तिंजा कर लिया है, इसलिए मुंह धोना जरूरी है। नहीं साहब, बहुत बड़ा जुर्म भी किया है, उससे भी मुंह धोना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि मुंह दिखाना भी तो है, मुंह दिखाना भी तो है। तो मुंह कैसा चाहिए? जैसा मुंह अगर आप सुनेंगे, अब देखें आप क्या मुंह दिखाओगे? वहां जा रहे हो, अपने घर वालों से दगा किया है, माँ बाप से बेवफाई की है, वहां तुमको भेजा था पढ़ने के लिए, कुछ और करके आ रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह दिखाओगे? बोलते हैं ना, क्या मुंह दिखाओगे? तो जब कल जाओगे तो क्या मुंह दिखाओगे? क्या मुंह? जब हमने कुरान से पूछा कोई मुंह दिखा दे ताकि उसी मुंह और चेहरे के मुताबिक हम भी अपना मुंह बना लें, हम भी अपना मुंह बना लें, तो अल्लाह ने कहा देखो ना वद्दुहा, देखो ना, जिस चेहरे का जिक्र मैंने कुरान में किया है, वद्दुहा, उस चेहरे जैसा चेहरा बना लो। वल्लैली इज़ा सजा, उसकी जुल्फ जैसी जुल्फ बना लो। आज लोग एक्टर और क्रिकेटर के हिसाब से दाढ़ी भी रख रहे हैं, बाल भी रख रहे हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूं, बच्चे बता जरा, ये जो क्रिकेटर के हिसाब से तूने दाढ़ी उगाई है, इसमें आराम मिल रहा है? और हुजूर के चेहरे अनवर के हिसाब से अगर तू मुंह मुबारक दाढ़ी रखेगा तो उसमें क्या तकलीफ चुभन है? अरे जैसे तू इसमें उगाने में तकलीफ नहीं हो रही, उसमें उगाने में कौन सी तकलीफ है? उस उगाने की बात करो तो कहते हैं शादी नहीं होगी, उस उगाने की बात करो तो कहते हैं अपने मजाक उड़ाएंगे। यही वजह है कि तुमने अपना चेहरा वद्दुहा से जब दूर किया, दुनिया ने तुम्हें जलील कर दिया। और जिस दिन तुमने अपना चेहरा अहमद मुख्तार के चेहरे की तरह बनाए रखे हुए थे, यहाँ भी सुरखरू थे, वहां भी सुरखरू। आप देखते होंगे एक बहुत पुराना किस्सा है। वैसे तो हम किस्सा सुनाने के आदी नहीं है और वक्त भी बहुत कम है। एक शेर का बच्चा बचपने में बिछड़ गया और बिछड़ने के बाद वो बकरियों के रेवड़ में जाकर रहने लगा। अब बच्चा था, उसका वो शिकार वाला अंदाज अभी आया नहीं था, तो बकरियों के साथ रहता और रहते रहते उसने भी घास खाना शुरू कर दिया। घास खाते खाते फिर वो उन्हीं के साथ रहना, आराम करना, रेस्ट करना, ज़िंदगी गुजरने लगी। एक वक्त बीता जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ और उसके माँ बाप तलाश में लगे हुए थे, तो उसने देखा कि ये तो बकरियों के साथ घूम रहा है। शेर का बच्चा, उसे बुलाया, इधर आ इधर आ। वो आया और बकरियों की तरह बोलना भी सीख गया था। उनकी कॉपी करते करते बकरियों के अंदाज में ढल गया। उन्होंने कहा, समझाया कि तू शेर है, शेर, बकरियों के साथ रहना तेरा वतीरा नहीं है, तू तो बकरियों के शिकार के लिए पैदा हुआ है। कहा कि नहीं नहीं, मैं भी बकरी हूं, और बकरियों के अंदाज में वो बोलता जा रहा है। अब ये समझाने वाला शेर परेशान हो गया, कैसे इसे समझाऊं। उसे पकड़ा, कहा आओ मेरे पीछे। तो आईना तो होता नहीं है जंगल में, पानी का एक तालाब था, तालाब के किनारे वो ले गया। कहा देख, इसमें झांक कर देख, तेरा चेहरा बकरियों की तरह नहीं है, तेरा चेहरा बकरियों, मुझ में तेरा चेहरा मिल रहा है, मुझ में तेरा चेहरा मिल रहा है, मुझ में तेरा चेहरा मिल रहा है। ये मुसलमान दुनियादार, ये बकरियों, ये शैतानी बकरियों के रेवड़ में रहते रहते अपना चेहरा भूल गए, अपना चेहरा भूल गए। तुम्हारा चेहरा इन चेहरों की तरह नहीं होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा मदनी ताजदार के चेहरे की तरह होना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, फगसिलू वजूहकुम, आप ईमान वाले हैं? हाँ, हम ईमान वाले हैं। नमाज का इरादा रखते हैं? हाँ, नमाज कायम करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने कहा फगसिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो। मुझे बताइए सच्चाई से, कितने बंदे यहाँ ऐसे हैं जो वजू करते हैं तो पहले चेहरा धोते हैं? कोई है ऐसा? सब हाथ धोते हैं, धोते हैं ना, पहले हाथ, ये कलाई तक धोते हैं,
कलाई तक, क्योंकि वअयदियकुम इलल मराफिक बाद में आ रहा है, जो केहुनियों समेत धोने का हुक्म है। लेकिन कब? जब आप चेहरा धो लेंगे तब, उससे पहले नहीं। तो अल्लाह ने कहा फग़सिलू वजूहकुम। तो कौन ऐसा बंदा है जो डायरेक्ट आते ही वजू का इरादा रखता है और वो चेहरा धोता है? कोई ऐसा है? नहीं ना, सब पहले हाथ धोते हैं। और कुरान कह रहा है वजू के लिए पहले चेहरा धो, चेहरा धो। तो आप कहेंगे ये हाथ धोना हुजूर की सुन्नत है, ये हाथ धोना हुजूर की सुन्नत है। और अल्लाह कह रहा है कुरान में फग़सिलू वजूहकुम, नमाज का इरादा, क़याम सलात का इरादा रखते हो तो पहले चेहरा धो। तो अब हम अल्लाह की माने या रसूलुल्लाह की माने? अब जो अल्लाह का हल्ला मचाए हुए हैं और हर तबलीग में जाकर कहते हैं हम अल्लाह का पैगाम लेकर, पहले अल्लाह को समझो फिर समझाना, अल्लाह को पहले समझो फिर समझाना। और कुरान कह रहा है फग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरों को धो, और रसूल कह रहे हैं हाथ धो, रसूल कह रहे हैं हाथ धो। हम अल्लाह की माने या रसूल की? और मानना क्या है? सारे मुसलमान पहले हाथ ही धो रहे हैं, सारे मुसलमान पहले हाथ ही धो रहे हैं। क्या पता चला? वहदहू ला शरीक खालिक़े अर्दो समा, हम सब के पालनहार ने ये हुक्म दिया। अरे नादान, तुम समझे नहीं अभी तक? मुझ तक पहुंचने के लिए तुम्हें रसूलुल्लाह तक पहुंचना होगा। फग़सिलू वजूहकुम वअयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुउसिकुम वअरजुलकुम इलल काबैन। अब आप देखें, गौर फरमाते रहें, ये जो कुरान में जितने लफ्ज़ हैं, चेहरा धोना, केहुनियों समेत हाथ धोना और सर का मसह करना और काबैन टखनों तक पाँव धोना, ये चारों चीज़ें, 4 चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क्या है? वज़ू में चारों चीज़ें फ़र्ज़ हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने बयान कर दिया। तो फ़र्ज़ है ये चारों चीज़ें। अल्लाह को मानने का मतलब ये है कि फ़र्ज़ को मान लिया जाए, फ़र्ज़ को मान लिया जाए। और जो कहे कि मैं रसूल को नहीं मानता, मुझे उनसे कोई गर्ज नहीं, अल्लाह सब कुछ अल्लाह, यकीनन एक लखनऊ में एक साहब ने मुझसे कहा जो कुछ भी हो हुजूर अल्लाह के बाद ही हैं। मैंने कहा हुजूर अल्लाह के बाद तो कोई है ही नहीं, अल्लाह के बाद तो कोई है ही नहीं। वो खालिक है साहब, वो रब है, वो मालिक है, उसके बाद कोई है ही नहीं। आप उसकी अहदियत, उसकी वहदानियत, उसकी मलूकियत में हर्फ ला रहे हैं, उसके बाद किसी को लाकर हुजूर जो कुछ है, हुजूर सब कुछ है, तो वो तमाम मखलूकात में सबसे अफजल है। खालिक के बाद कौन है? अब वो थे अल्लाह की बात करने वाले, वो बड़ा हैरानी से हमें देखते रहे कि ये किस टाइप के हैं। हमने कहा यही तो आप लोगों की कमज़ोरी है कि आप अल्लाह की तरफ निकले, अल्लाह ने आपको कमज़ोर बना दिया। अगर मदीने की तरफ निकलते तो आपको अल्लाह मजबूत बना देता, मजबूत बना देता। अब आप देखें, गौर फरमाएं, मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि एक किस्सा है, एक किस्सा सुनाकर, और ये किस्सा जो न माने वो काफिर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये कुरान का किस्सा है। कहाँ का है? सूरह कहफ में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार, इस ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा भी कोई तुझसे प्यार करने वाला है? मेरा वफादार, मुझसे ज़्यादा भी कोई वफादार बंदा है? कहा एक बंदा और रहता है, एक बंदा और रहता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी को लिया, लेकर निकल पड़े कि हम उससे मिलेंगे। साहब सफ़र शुरू हो गया, लंबा किस्सा है, इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने जो महल्ले इस्तिशहाद है वो बयान करके फिर अपनी महफिल को बर्खास्त कर दिया जाएगा और दरूद व सलाम हुजूर की बारगाह में पेश कर लिया जाएगा। तो देखें आप, वो निकल पड़े, चलते 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 वो मिलेंगे कहाँ? अल्लाह ने कहा मजमउल बहरैन औ अमदिया हुकुबा, कि जहाँ पे 2 दरिया मिल रहे हों वहीं पर वो मिलेंगे, वहीं पर वो मिलेंगे। दोनों चले और एक मछली ले लिया साथ में, मछली है वो पसंदीदा ग़िज़ा है, उसे रख लिया साथ में। आप सफ़र पे निकलते हैं तो कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर लेते हैं, निकल गए। और
جو ان کے ساتھ ہیں ان کے شاگرد وہ بھی نبی ہیں اللہ کے، وہ بھی دونوں چل پڑے۔ جاتے پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، ایک پہاڑی ایریا ہے، وہاں لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھے اور سفر آگے بڑھایا۔ تو کچھ دور چلنے کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں سنتے ہو مجھے بھوک لگ گئی، اس سفر میں میں تھک گیا، وہ کھانا نکالو کچھ کھا لیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی جانتے ہیں جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے ریسٹ کے لیے، وہاں وہ مچھلی جو مر چکی تھی ہم نے بنا کر رکھا تھا ساتھ میں، وہ مچھلی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہو کے سرابا اس نے سرنگ بنایا، اور سرنگ بنا کے راستے سے وہ گزرتے دریا میں شامل ہو گئی، دریا میں وہ مچھلی شامل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ جس راستے سے ہم لوگ آئے ہیں اسی کی تلاش، جس منزل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اسی کے لیے تو ہم لوگ نکلے تھے، چلو واپس۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کہاں لے جا رہے؟ کہا جہاں پہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، جہاں پہ مچھلی زندہ ہوئی تھی وہیں چلو۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا وہ مرد، جس مرد کی تلاش میں، جس بندے کی تلاش میں ہم لوگ نکلے ہیں، وہ بندہ کہیں اور نہیں رہتا، وہیں رہتا ہے جہاں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک اللہ کا ولی حضرت خضر علیہ السلام، کون ہے؟ خضر علیہ السلام، اور یاد رکھیں علماء کا الگ الگ قول ہے، کسی نے کہا وہ نبی تھے، کسی نے کہا وہ ولی ہیں، لیکن راجح قول، زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ ولی ہیں۔ کیا ہے؟ وہ ولی ہیں۔ اور اگر نبی مان لیا جائے تو چند خرابی لازم آ جائے گی۔ کیسے؟ اگر آج بھی خضر علیہ السلام زندہ ہیں اور نبی مان لیا جائے تو پھر یہ کہا جانا لازم آ جائے گا کہ حضور کے بعد بھی نبی ہیں، حالانکہ حضور کے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ تو زیادہ راجح قول یہ ہے دوستوں کہ وہ ولی ہیں، اور ولی جہاں ہو تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں وہاں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ جب مردہ زندہ ہو جائے، ولی جہاں ہو تو سوچو ولی کی حیات کا حال کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں قبر کے اندر جو ولی ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ ارے صاحب اگر دل مردہ ہو اور ولی کے در پر چلے جائیں تو وہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا وہ جو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جانتے ہو وہ ہمارے بندوں میں سے خاص بندہ ہے۔ دونوں پہنچ گئے اس جگہ پہ جہاں پہ حضرت خضر تھے، دونوں پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا جانتے ہو وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ جانتے ہو موسیٰ ہم نے ان کو رحمت دی ہے اپنے پاس سے، اپنے پاس سے ہم نے ان کو رحمت دی ہے، اپنے پاس سے۔ اور ہم اپنے پاس سے اپنے مکان پر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ مکان میرے رب کا فضل ہے۔ ہم بولیں تو یہ اور بات ہے، رب بولے یہ اور بات ہے۔ ہم کہیں اپنے بیٹے کو پیدا ہو یہ میرے رب کی رحمت ہے، ہم بولیں تو یہ اور بات ہے۔ رب بولے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ ایک صاحب نے کہا میلاد کرنا کیسا ہے، جھنڈی لگانا کیسا ہے، سجاوٹ کرنا کیسا ہے؟ ہم نے کہا انہی سے کہا دیکھیں ہم جھگڑالو ٹائپ کے آدمی نہیں، بہت سہولت سے بات کرتے ہیں اور سہولت کو پسند کرتے ہیں، بہت سہولت سے۔ ہم نے کہا بچے آپ اپنے مقام پہ لکھتے ہو یہ میرے رب کا فضل ہے، اور قرآن میں اللہ نے کہا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، نبی کہہ دیجئے کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کسی کو مل جائے فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائے، چاہیے کہ وہ خوشی منہ لٹکا کے نہ بیٹھے، ورنہ فضل اور رحمت چھین لی جاتی، نہ شکروں کے لیے رحمت اور فضل کی بارش نہیں ہوتی۔ منہ لٹکائے لٹکائے لوگوں کا منہ بھی منحوس کی طرح ہو جاتا ہے۔ ذرا مسکرا کے بولیں یا رسول اللہ، چاہیے کہ جسے فضل مل جائے
رب کا فضل ملے، رب کی رحمت ملے، وہ خوشیاں منائے. هو خیر مما یجمعون، یہ بہتر ہے کہ سب مل کے خوشیاں منائیں. سب مل کے ہم کہتے ہیں آپ کا مکان رب کا فضل ہو گیا، آپ کی بیٹی رب کی رحمت ہو گئی، اور حضور کی پیدائش فضل نہیں ہے جبکہ وہ سراپا رحمت ہے. سراپا بات وہی آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ رحیم اور حضور کی نرمی ان بندوں کے لیے ہے جو مومن ہیں، تو اب دیکھیں آپ، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جانتے ہو موسیٰ، وآتیناہ رحمتا من عندنا، اپنے پاس سے، اپنی اندیت سے، اپنے پاس سے میں نے ان کو، کن کو؟ خضر کو رحمت دی ہے. سبحان اللہ، رحمت دی ہے. تو رحمت کہیں اور تلاش مت کیا کرو، رحمت اللہ کی وہاں ملتی ہے جہاں اس کا ولی رہتا ہے. اس کا ولی رہتا ہے. اور انسانوں میں جو سب سے ٹاپ کلاس کے لوگ ہیں انہیں نبی کہتے ہیں. انسانوں میں جو سب سے عظیم درجہ، رفیع الدرجہ ہوں، عظیم المرتبہ ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ نبی ہیں. دو نبی کو اللہ بھیج رہا ہے ولی کے پاس، دو نبی کو بھیج رہا. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے نبی ہیں کہ ولی کے پاس جا رہے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں ولی کے پاس جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یہی تو تمہارا جواب ہے کہ جب نبیوں کو اللہ ولی کے پاس بھیج سکتا ہے تو امتیوں کو کیوں نہیں بھیج سکتا؟ امتیوں کو کس بات کی ایٹھن ہے؟ جب ٹاپ کلاس کے لوگ ولی کے پاس جا سکتے ہیں تو تم بھی جایا کرو دھاوا شریف، تم بھی جایا کرو کچھوچھا شریف، تم بھی جایا کرو بریلی شریف، تم بھی جایا کرو کلیر شریف، تم بھی جایا کرو دیوا شریف، تم بھی جایا کرو دہلی شریف، تم بھی جایا کرو اجمیر شریف، تم بھی جایا کرو بغداد شریف. حضرات گرامی، اب دیکھیں بس آخری بات ہے. کہا میں اپنے پاس سے، میں نے اپنے پاس سے ان کو رحمت دی ہے، رحمت دی ہے اپنے پاس سے. اور وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، ان کو کسی نے پڑھایا نہیں، میں نے انہیں علم لدنی دی ہے. اپنی قربت سے عجیب بندے ہیں. ایک ولی کو اللہ اپنی قربت سے علم دے سکتا ہے اور اپنے محبوب کو علم نہیں دے سکتا. محبوب کو علم نہیں دے سکتا. اچھا دیکھیں، وہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام، اور خضر نام اس لیے نہیں ہے، خضر نام اس لیے نہیں کہ بس یوں ہی نام رکھ دیا گیا. ان کا حال یہ ہے کہ بنجر زمین پہ قدم رکھ دیں، وہ بنجر زمین ہر شاداب ہو جاتی ہے، ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے، وہاں پودے اگ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے اپنی طرف سے رحمت دی ہے. اللہ نے اپنی طرف سے رحمت دی ہے. یہی وجہ ہے کہ جن کے دل میں ہریالی ہے، جن کے دل میں شادابی ہے، جن کے دل میں ہریالی ہے، تازگی ہے، وہی بندے ولیوں کی بارگاہ میں ٹکتے ہیں. وہی بندے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ٹکتے ہیں. اور جس کے دل میں شادابی ہے، جس کے دل میں ایمانی پودا ہرا بھرا ہے، اسی دل میں غوث اعظم کی آمد ہوتی ہے، اسی دل میں آتی ہے. گھبرائیں نہ، گھبرائیں نہ، پریشان نہ. یہ نظام کسی ملا کا بنایا ہوا نہیں، یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو غوث اعظم کی محبت سے مالا مال فرمائے، ان سے نسبت رکھیں، ان سے قربت رکھیں، ان سے محبت رکھیں. اور سب سے محبت کر کے آپ نے دیکھ لیا، غوث اعظم سے بھی محبت کر کے دیکھ لیں، ان سے بھی محبت کر کے دیکھ لیں. اس بارگاہ سے رحمت ملتی ہے، اس بارگاہ سے برکت ملتی ہے، اس بارگاہ سے ہدایت ملتی ہے، اس بارگاہ سے کرم ملتا ہے، اس بارگاہ سے فضل ملتا ہے. اور یہ سب کچھ کسی اور کی طرف سے نہیں آتا، اللہ رسول کی طرف سے آتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مقدس محفل کو